فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اسمبلی اور کونسل کے احاطے کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے نئی تعمیرات اور تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء پی سرینیواس ریڈی، سری دھر بابو، کونڈا سوریکا اور سیتکا کے ہمراہ چیف منسٹر نے اسمبلی سے متصل کونسل کی عمارت کی منتقلی پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی طرح تلنگانہ اسمبلی تیار کی جائے گی جہاں اسمبلی اور کونسل ایک دوسرے سے متصل رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کی نئی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایوانوں کے علاوہ کوئی اور عمارت احاطے میں موجود نہیں رہے گی۔ موجودہ بعض عمارتوں کو منہدم کرتے ہوئے گرینری میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اسمبلی کے سیکیورٹی انتظامات میں مزید چوکسی اختیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اسمبلی سے متصل ریلوے گیٹ سے باغ عامہ میں داخلے کی گنجائش ہے، لہٰذا دیوار کی بلندی میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اور کونسل کے ارکان کو مارننگ واک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ واضح ہے کہ قانون ساز کونسل جوبلی ہال کی عمارت میں کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ کونسل کو اسمبلی کی قدیم عمارت میں منتقل کیا جائے۔ اس کے لیے عہدیداروں سے ایکشن پلان طلب کیا گیا ہے۔ آیا قدیم عمارت کو منہدم کیا جائے گا یا پھر اس کی مرمت اور تزئین نو کافی ہوگی؟ صدر نشین قانون ساز کونسل سکھیندر ریڈی نے عمارتوں کی منتقلی کے بارے میں بعض تجاویز پیش کی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر سی ایل پی کی موجودہ عمارت کو منہدم کرتے ہوئے علاقے میں سرسبزی و شادابی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ریاست کے نوجوان آئی پی ایس عہدیدار اویناش موہنتی نے پولیس کمشنر سائبرآباد کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ 2005 آئی پی ایس بیچ سے تعلق رکھنے والے اویناش موہنتی کمشنر پولیس کا جائزہ حاصل کرنے سے قبل وہ جوائنٹ کمشنر سائبرآباد کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدارانہ پولیسنگ اور لا اینڈ آرڈر کی برقراری کو اولین ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سائبرآباد علاقے میں ٹریفک کے مسائل پر بھی توجہ دی جائے گی اور اس کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کیا جائے گا۔ اویناش موہنتی سابق میں ڈپٹی کمشنر پولیس ٹریفک سائبرآباد کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے سائبرآباد میں غیر قانونی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی جس میں منشیات اور بردہ فروشی، اراضی مافیا شامل ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کرناٹک کی طرز پر نظم و نسق میں اقلیتی عہدیداروں کو اہم ذمہ داریاں اور اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر توجہ مرکوز کی ہے۔ چیف منسٹر نے سینئر آئی پی ایس عہدیدار شاہ نواز قاسم کو اپنا سیکریٹری مقرر کرتے ہوئے مسلمانوں میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ حکومت مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل میں سنجیدہ ہے۔ انسپیکٹر جنرل ملٹی زون 2 شاہ نواز قاسم متحدہ آندھرا پردیش میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میڈیا کے مطابق انتخابی منشور میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل اور اقلیتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے عنقریب ایکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ شاہ نواز قاسم کو طویل عرصے تک ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کے طور پر اقلیتی اداروں کی کارکردگی کا خاصا تجربہ ہے۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر ریونت ریڈی چاہتے ہیں کہ نہ صرف اقلیتوں سے متعلق اسکیمات پر مؤثر عمل آوری ہو بلکہ اسکیمات پر عمل کرنے کے لیے سنجیدہ عہدیداروں کا اقلیتی اداروں میں تقرر کیا جائے۔ شاہ نواز قاسم کو سیکریٹری برائے چیف منسٹر کے ساتھ جو محکمہ جات الاٹ کیے جا سکتے ہیں ان میں اقلیتی بہبود سر فہرست ہیں۔ شاہ نواز قاسم نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھال لی اور چیف منسٹر کے ساتھ شہر کے ارکان اسمبلی کے جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ تلنگانہ آر ٹی سی بسوں میں مسافروں کی ریکارڈ تعداد دیکھی گئی۔ آر ٹی سی ای ڈی آپریشنز شیکر نے بتایا ہے کہ 51 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آر ٹی سی بسوں میں اب تک سفر کیا۔ اتوار کو 41 لاکھ کے قریب افراد نے سفر کیا تھا۔ خواتین کو مفت سفر دستیاب ہونے کی وجہ سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کارتک ماسم کے مہینے کے آخری پیر کے دن خواتین نے ریکارڈ تعداد میں بسوں میں سفر کیا۔ اس رش کا اندازہ لگاتے ہوئے آر ٹی سی کے عہدیداروں نے باقاعدہ اور اضافی بسیں بھی چلائیں جبکہ ڈرائیور اور کنڈکٹر ہفتے کی چھٹی لیے بغیر اپنے فرائض انجام دیے تھے۔ آر ٹی سی ذرائع نے بتایا کہ بسوں میں سفر کرنے والی خواتین مسافروں کی تعداد 60% درج کی گئی ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت کے قیام کے بعد خواتین کو آر ٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی اور پیر کو کل 51 لاکھ لوگوں نے
RTC बसों में सफर किया, जिनमें से 20.87 लाख मर्द और 30 लाख खवातीन ने मुफ्त सफर किया। आम तौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर RTC में सवार होते हैं तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी 11.74 करोड़ हुई है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुजव्वज़ा दौरे हैदराबाद के इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा है कि वो बाहमी इश्तिराक और तालमेल के जरिए मौसर इंतजामात को यकीनी बनाएं। जायजा इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने सालाना दौरे के सिलसिले में 18 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगी। वो 5 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेंगी और 23 दिसंबर को वापसी होंगी। पुलिस डिपार्टमेंट को मुनासिब सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात की हिदायत दी गई है। महकमे जात, हेल्थ, R&B, बल्दी, नज़्म व नस्क, बरखी और दीगर महकमे जात को इंतजामात की जिम्मेदारी दी गई है। इजलास में DGP रवि गुप्ता, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, सेक्रेटरी JAD शिशाद्री, सेक्रेटरी हेल्थ मुर्तजा अली रिजवी और दीगर ओहदेदार शरीक थे। लहसुन, प्याज और अदरक की कीमतों में फिर एक मरतबा ज़बरदस्त इजाफा हो गया है, जिससे आम और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। घरों के पकवान में प्याज और अदरक लहसुन का इस्तेमाल आम अशिया की फहरिस्त में शामिल है। उनके बगैर पकवान का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। लहसुन की कीमतों में 4 गुना इजाफा हो गया है, जबकि अदरक और प्याज की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। एक माह कबल लहसुन की कीमत 100 रुपए फी किलो थी। इस वक्त होलसेल मार्केट में 300 तक 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। रिटेल मार्केट में लहसुन 350 रुपए फी किलो, जबकि बाहर आम दुकानों में 400 रुपए फी किलो लहसुन फरोख्त हो रहा है। शहर हैदराबाद के अहम होलसेल मार्केट्स उस्मानगंज, मलकपेट लहसुन की सप्लाई में कमी आई है। तेलंगाना में कोहिर से बड़ी मिकदार में ज़रूरी अशिया शहर पहुंचती थी। राजस्थान, महाराष्ट्र से भी चंद ज़रूरी अशिया पहुंचती हैं। हैदराबाद मार्केट कमेटी के ओहदेदारों ने बताया है कि एक माह कबल लहसुन की 30 से 50 लॉरियां रोजाना मार्केट को पहुंचती थी, अब सिर्फ 20 से 25 लॉरियां पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लहसुन की कीमत में इजाफा हुआ है। लहसुन, अदरक और प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफे से आम और मुतवस्सित तबके पर इसका माली बोझ आयद हो रहा है। हर पकवान में इस्तेमाल होने वाली प्याज की कीमत आम लोगों को चौंका देने वाली साबित हो रही है। फिलहाल शहर हैदराबाद के होलसेल मार्केट्स में फी क्विंटल प्याज की कीमत 3,000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए तक पहुंच गई है। रिटेल मार्केट में 50 से 60 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। ओहदेदारों का कहना है कि महाराष्ट्र से प्याज की दरामद में कुछ अरसे से कमी आई है, जिसकी वजह से प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है। सिकंदराबाद होलसेल ग्रेन्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने इंकशाफ किया है कि नई फसल दिसंबर के अवाखिर में मार्केट में आएगी, तब प्याज की कीमतों में कमी होने के कवी इम्कानात हैं। महाराष्ट्र के नासिक और पुणे के इलाकों में जहां प्याज और लहसुन उगाया जाता है, वहां हाल ही में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में हजारों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से प्याज और लहसुन की पैदावार में जबरदस्त कमी आई है। ताजिरों का कहना है कि कई इलाकों में हालिया बारिश से अदरक की पैदावार में कमी हुई है। साल 2024 के आज़मीन हज के लिए एक अहम इत्तला है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज के इसरार पर वजारत मजहबी उमूर ने दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिन की तौसीह का ऐलान किया है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। बैरून मुल्क से डॉलर में अदायगी करने वालों को बगैर कुरानदाजी कामयाब करार दिया जाएगा, जबकि हज बदल पर 5 साल की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर ने बताया है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले रवां बरस हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अकेली खातून हलफनामा फराहम करने पर खवातीन के काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज करने की इजाजत है। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। 5,000 की खरीदारी पर 1,000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939 485 4888.
पार्लियामेंट सिक्योरिटी लैब्स केस में गिरफ्तार चारों मुल्जिमान को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। चारों मुल्जिमान के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हादसे के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। पार्लियामेंट पे 2001 के दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर एक बड़ी सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सामाईन की गैलरी से 2 अफराद सागर शर्मा और मुनव्वररंजन D ऐवान में कूद पड़े, नारे लगाए और केबिन के जरिए पीला धुआं फैला दिया। इस दौरान कुछ अरकान असेंबली ने इन दोनों को पकड़ लिया। उसी वक्त 2 दीगर मुल्जिमान अमोल शिंदे और नीलम देवी ने पार्लियामेंट के अहाते के बाहर कैनू से रंगीन धुआं छोड़ा और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल गजा पर अंधाधुंध बमबारी की वजह से बैनुल-अक़वामी हिमायत खो रहा है। अमेरिका के सदर ने गैर मामूली तौर पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल एक ऐसे वक्त किया जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रोक देने की हिमायत में भारी अक्सरियत से वोट दिए गए। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की हंगामी इजलास में जंग बंदी की करारदाद के हक में वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की 192 रुकनी जनरल असेंबली में करारदाद के इस मसवदे को मंजूरी दी गई है जिसे मिस्र ने पेश किया था। 153 मुमालिक ने करारदाद के हक में, जबकि अमेरिका, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया समेत 10 मुमालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया। अर्जेंटीना, यूक्रेन और जर्मनी समेत 23 मुमालिक वोटिंग से गैर हाजिर रहे। फलस्तीन की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ तकरीर करते हुए तुर्की के पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट हसन दिल का दौरा पड़ने से गिर गए। उन्हें फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि MP हसन की हालत तशवीशनाक है और वो ICU में जेर इलाज हैं। दिल का दौरा पड़ने से गिरने से पहले अपनी तकरीर में रुकने पार्लियामेंट हसन ने अपनी जज्बाती तकरीर में तुर्की की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तारीख खामोश हो सकती है लेकिन सच खामोश नहीं होता। आप तारीख से बच सकते हैं, आप खुदा के गजब से नहीं बच सकते। MP हसन ने यह तबसरे इस लिहाज से तनकीदी अंदाज में किए कि तुर्की इसराइली हुकूमत और अमेरिका के साथ ताउन कर रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।